So we are going to discuss IMF. IMF बोले तो intermolecular force. Okay, intermolecular force of attraction. अच्छा, देखो, as the name indicates, inter means between the molecules. Okay, what does it mean between the molecules? Let's suppose आपके पास ये HCl है and this is also HCl. So this is a molecule, okay, and this is a molecule, right? तो इनके between जो attraction है ना, that is known as IMF. That is known as IMF. So that's why I was saying that it's the force of attraction between the two or more molecules. Between the molecules. This is very important to know. Between the molecules. लोग समझ रहे होते हैं कि ये intermolecular force है. This is not intermolecular force. This is a covalent bond. Covalent bond is not inter. It's intra. It's intra in the molecule. Okay. So we are going to discuss the intermolecular forces outside of the molecule. Remember, this is important to know. Okay. So outside the molecule, the attraction hai, that is called intermolecular forces of attraction. Okay. So intermolecular forces of attraction जो होती हैं, they are quite weaker as compared to ionic and covalent. अगर आप इनका मुकाबला करवाओ आयोनिक से, कोवेलेंट से, मेटालिक से, डेटिव से, तो ये सबसे लोवेस्ट होती हैं. बात समझ रहे हो? सबसे लोअर होती हैं, आयोनिक से भी, कोवेलेंट से भी, मेटालिक से भी, डेटिव से भी. तो बेसिकली दीज आर द आई कैन से weak forces of attraction. Okay, these are the weak forces of attraction, right? और अच्छा, इनका कोई प्रूफ कि ये एग्जिस्ट करती हैं, कोई एनी एक्सपेरिमेंट दैट वी कैन प्रूव? तो लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि मैं वाटर मॉलिक्यूल को हीट कर रहा हूं. ओके, मैं वाटर मॉलिक्यूल को हीट कर रहा हूं, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगी? मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगी? लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस. मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है. ऑप्शन नंबर 1, आई वुड बी गेटिंग दिस. और से सुनिएगा जरा आप. और आई वुड बी गेटिंग दिस. What do you think? What I would be getting? Hmm? The second one. Why not first one? Why not first one? Hmm? अब्दुल्ला क्या कहते हो बेटा? I think first one. Okay, ईमान क्या कहती हो बेटा? तवारिता, what do you think? Second one. So the first one is imbalance. Balancing We're के not अलावा, supposed to separate both of them. बैलेंसिंग के अलावा बात करो. We are not supposed to separate both of them. Okay. So, but the first one is you're breaking the bonds. So remember, you are only heating. Okay, and heating means that the boiling point for water is only 100 degrees Celsius. The boiling point for water is only 100 degrees Celsius. तो याद रखिएगा 100 degrees Celsius पर water only converts from liquid to gas. The covalent bond is not supposed to break down. The covalent bond is not supposed to break down. Remember, covalent bond तोड़ना is not a game. Okay, it requires a lot of energy that can only be broken down by using electricity, by using electrolysis. तो इसलिए
ये गलत है, ये सही है। तो हम जो उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है? आप बोलोगे कि दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, partial negative, partial positive, partial positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, positive। तो अल्टीमेटली जो ये वाली अट्रैक्शन है विच इज नोन एज IMF, तो याद रखिएगा वो तो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो तो मॉलिक्यूल को के बिटवीन जो IMF है उसको ओवरकम करने में यूटिलाइज हो रही है। सो आफ्टर द टाइम यू वुड सी दैट the water molecules would be going far away from each other just like that, would be going far away from each other just like that। तो लिक्विड में करीब करीब थे और वो गैस में वो दूर दूर हो गए। आपने जब उसको हीट किया तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल थे दे जस्ट went away from each other। तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट सपोज टू ब्रेक डाउन दिस कोवेलेंट बॉन्ड, दिस कोवेलेंट बॉन्ड, दिस कोवेलेंट बॉन्ड, बल्कि यू कैन ओनली ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो इसलिए ये गलत है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि आपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल? एट ओनली 100 डिग्री सेल्सियस यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द कोवेलेंट बॉन्ड। हम ओके वीक होता है लेकिन इतना भी नहीं होता कि तुम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेक डाउन कर दो। तो इसलिए याद रखिएगा this equation is correct। in this equation the liquid is going to convert into the gaseous form। okay, so ये intermolecular force की existence का proof है। ये intermolecular forces की existence का proof है कि they exist basically between the molecules। okay, so we have three types of intermolecular forces of attraction। Number one is ID force। ID force means that ID means instantaneous dipole। ID means instantaneous dipole। So this is in chemical bonding. Part of intermolecular force, yes। Or you can say it's So I also didn't known see this as in the textbook. Instantaneous. लंदन फोर्स। डिफरेंट नाम से होती है। लंदन Oh, yeah, फोर्स yeah, yeah, होगा, London. डिस्पर्जन फोर्स होगा, इट्स यू कैन से वेंडर वॉल फोर्स होगा। तो बेसिकली इसके काफी सारे नाम हैं। तो जो ज्यादातर यूज हुआ होगा वो लंदन फोर्स है। तो second thing is PD force, like the permanent dipole and permanent dipole, and the third one is hydrogen bonding, and the third one is hydrogen bonding। okay, the third one is hydrogen bonding। So first of all we have London force। First of all we have London force। London force, you can say van der Waal force, instantaneous dipole force, जो आपको अच्छा लगे। तो remember this force exists between the non-polar molecules। like non-polar means that अच्छा ये they are temporary, they are temporary, they are not permanent, they are temporary। तो पहले मैं आपको ये बता दूं ये कहाँ होती हैं। तो याद रखिएगा बेटा ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं, यानी कि बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं। और दे आर टेम्पररी रिमेंबर दे आर टेम्पररी। सो लेट्स सपोज I have this, you can say chlorine molecule just like that। Chlorine molecule, if I ask is this polar or non-polar, what would you say? Is this polar or non-polar? Yes,
Non-polar Non-polar. because it has no charge. Non-polar, exactly. There, it is non-polar. If I ask, how can you say that this is non-polar? Justify your answer. Justify your Has statement. Because same element in the same has no compound. charge. Same atoms with the same electronegativity. That's why this is non-polar. भाई let's suppose अगर इसकी electronegativity is 3.1, इसकी भी 3.1. Let's suppose हमारे पास एक चेयर है. Let's suppose हमारे पास एक चेयर है just like that. Or you are pulling this chair with a force of 3.1 Newton. I am pulling chair with a force of 3.1 Newton. So कहाँ मूव करेगी चेयर? आप बोलोगे कहीं भी मूव नहीं करेगी, फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं. तो देयर इज नो चार्ज इन एनी वन ऑफ क्लोरीन. क्यों? कि दोनों की जो स्ट्रेंथ है that is the same. Charges कब होते हैं? When there is a difference in electronegativity. जो lower electronegative element होता है, that would be the positive one. जो more electronegativity जिसकी होती है, जिसकी electronegativity higher होती है, that would be becoming the negatively charged particle. But इस case में they have the same electronegativity. That's why this is non-polar. That's why this is non-polar. तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बिटवीन जो अट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड द लंदन फोर्स. लेकिन अब आप ये सोच रहे होगे जब ये है ही नॉन पोलर मींस दैट देयर इज नो चार्ज, सो हाउ कैन दे अट्रैक्ट टुगेदर? दिस इज द मेन क्वेश्चन. भाई हमने कह दिया ना कि दिस इज नॉन पोलर. what is mean by the term non polar? No charge. Just like a magnet has two poles, north pole and south pole. Same goes with the molecules. हमारे पास molecules होते हैं, they are polar, having a positive and negative charge, but there is no charge on this chlorine. So how they are going to attract with each other? So that's the thing that I'm going to explain. So remember, I'm using the term that is very important, symmetrical distribution of electron. It would take time, but this is a long-term investment. Symmetrical distribution of electron. Symmetrical distribution of electron. भाई एक मिसाल देता हूं मैं आपको. This is A and this is B. It has 20 electrons and it has 30 electrons. So what would I say? It would be having negative charge, it would be having positive charge. I'm using this symbol that is called partial. But this would be this would be polar, right? Exactly, because there is no symmetrical distribution of electron. Electrons are different. This is called unsymmetrical distribution. So due to the unsymmetrical distribution of electron, the charges are produced. But in this case, that is chlorine, there is symmetrical distribution of electron because both have the same electronegativities. Both have the same number of electrons. There is no charge. You have 50,000, I have 50,000. Now no one is poor, no one is rich. We are the same. ऐसे ये compound भी, ये molecule भी same है. This is non-polar. There is no charge on this chlorine. But remember, भाई आप अकेले बैठे हो. ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ कोई भी नहीं है, तो आपका जो मूड है बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूट्रल है. ना आप सैड होगे ना आप हैप्पी होगे, है ना? तो क्योंकि कोई है ही नहीं. किसी के होने से बेसिकली वी आर गोइंग टू चेंज. किसी के होने से वी आर गोइंग टू चेंज. तो when the two chlorine molecules just like that, when they approaches to each other, you know there are 3 lone pairs on each chlorine atom. Am I right? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, क्योंकि chlorine is in group 7. It has 7 electrons in their outer shell. तो एक electron busy है to making for making the covalent bond. Others are free, that are called lone pairs. So each chlorine atom is having 3 lone pairs of electrons. So
there is symmetrical distribution of electron. Right now there is no charge, no charge, no charge, no charge. But remember, when the two chlorine molecules are coming close to each other, ऐसे, so what would happen? What would happen? Just imagine. Just imagine what would happen. Electrons are going to repel each other. Electrons are going to repel each other. See this, see this. आप किसी भी एक को सोच सकते हो यार. Let's suppose आप इमेजिन कर लो, सपोज कर लो, कंसीडर कर लो कि इसने इसको रिपेल कर दिया, या आपकी मर्जी, आप सोचो इसने इसको रिपेल कर दिया. कोई ना कोई किसी ना किसी को रिपेल करेगा, ऑब्वियस सी बात है. आई एम कंसीडरिंग दैट इस क्लोरीन ने उसको रिपेल किया. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये कहां चले गए? ड्यू टू द रिपल्जन, ड्यू टू द रिपल्जन, ड्यू टू द रिपल्जन कहां चले गए? मूव कर गए, मेकिंग द मॉलिक्यूल partial negative. It has more electrons, more electrons. That's why this chlorine becomes partial negative. Sir, could you please Ultimately, repeat this part? I didn't understand. okay, मैंने कहा कि जब दो क्लोरीन मॉलिक्यूल अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, so obviously electrons have a negative charge. They are going to repel each other. They are going to repel each other. तो जब ये वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल इसके पास आया ऐसे करके, तो जाहिर सी बात है जब ये इसको हिट करेगा आके, जब ये इसको हिट करेगा आके, तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप बोलेंगे कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे रिपेल होके कहाँ चले जाएंगे? पीछे चले जाएंगे. भाई मैं आपको कहता हूं, दिस इज अ बिग मैग्नेट, दिस इज अ स्मॉलर मैग्नेट. जब मैं इन दोनों मैग्नेट को करीब लेकर आऊंगा तो ये वाला मैग्नेट आगे को मूव करने लग जाएगा. रिपल्जन हो रही है ना, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू रिपेल दीज इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके कहाँ जा रहे हैं? बैक, बैक हो रहे हैं, बैक हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? रिपल्जन हो रही है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स. तो व्हाट वुड हैपन आफ्टर द रिपल्जन? What would happen after the repulsion? You will say, first point, there would be unsymmetrical, there would be unsymmetrical distribution of electron, there would be unsymmetrical distribution of electron. As a result, this chlorine would become partial negative, this chlorine would become partial negative, and this chlorine would become partial positive. What is the reason? What is the reason? Because it has more electrons, it has more electrons, it has less electrons, it has less electrons. So due to the unsymmetrical distribution of electron, they got charges, they got charges. लेकिन अब आप बोलोगे सर कितनी देर के लिए? जब तक ये एक दूसरे के करीब करीब हैं ये तब तक है. That's why I'm saying that this is temporary. भाई लेट्स सपोज मुझे आप अच्छे नहीं लगते हो, मतलब ऐसी बात कर रहा हूं मैं, मुझे आप अच्छे नहीं लगते हो, मैं एक रूम में बैठा हूं, तुम आकर बैठ गए, तो मैं बोलूंगा भाई कब जाएगा तो मुझे सुकून आएगा भाई. तो जब तक तुम्हारी प्रेजेंस है उस रूम में, तो मैं बोलूंगा यार मैं दूर दूर ही रहूं, इससे तो अच्छा है. बात समझ रहे हो? ये मेरे दिल में कब तक है? जब तक तुम करीब हो मेरे. जब तुम दूर चले जाओगे, आई वुड बी न्यूट्रल, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं. भाई जब तक ये चार्जेस कब तक हैं? जब तक ये दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास हैं. जैसे ही मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, there would be no any attraction, there would be no any charge. इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में चले जाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी से दैट ये जो होता है ये टेम्पररी होता है. भाई ये टेम्पररी डायपोल है, कुछ देर के लिए है. जब तक ये मॉलिक्यूल करीब करीब है जब तक डायपोल है, जब तक दूर हो जाएंगे तो डायपोल खत्म हो जाएगा. Why I am saying that dipole है? What is mean by the term di and pole? Di means two, pole means charges. तो एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया. डायपोल क्रिएटेड, डायपोल क्रिएटेड. अच्छा एक दफा अगर डायपोल क्रिएट हो गया ना,
एक दफा अगर डायपोल क्रिएट हो गया, एक दफा, जैसे अक्सर आपने देखा होगा मूवीज में ज़ोंबीज जो होते हैं, एक ज़ोंबी अगर आ गया, एक, ओनली वन, वो सबको क्या करेगा, जैसी सबको वो जो है ना काटेगा तो सारे ज़ोंबीज बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी है, एक मॉलिक्यूल अगर तुमने चार्ज, एक मॉलिक्यूल पे अगर चार्ज आ गया ना, एक मॉलिक्यूल पे, तो वो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उस कंटेनर पे, सबको 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 वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा, सबको वो क्या बना फिर वो देगा, सारे सबको रिपेल पोलराइज कर करेंगे। देगा। yes, ड्यू टू द रिपल्जन इट हैपेंड। कि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुई है, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको रिपेल किया है ना, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन पीछे चले गए, वरना क्यों पीछे जाते भाई, वो ये करीब आया है तो तभी इलेक्ट्रॉन पीछे गए, रिपल्जन हुई है, स्ट्रॉन्ग रिपल्जन हुई है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपल्जन, दिस क्लोरीन गॉट नेगेटिव चार्ज, this chlorine got positive charge. Hence, I can say that this chlorine molecule become polar. It becomes polar because it has a charge. लेकिन कुछ देर के लिए है, जब तक ये मॉलिक्यूल करीब करीब है। मैं आपको कहता हूँ ये लो, मैं इसको ले गया, मैंने कहा चल भाई अपनी जगह पे चले जाओ, शाबाश, वो वहां चला गया। अब क्या होगा पता है, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। नाउ इट बिकम्स अगेन दिस इज नॉन पोलर, अगेन दिस इज नॉन पोलर। जैसे ही ये क्लोरीन आएगा, जैसे ही ये क्लोरीन आएगा, दोबारा रिपल्जन होगी, फिर इलेक्ट्रॉन उठ के पीछे चला जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन उठ के पीछे चला जाएगा, फिर I would say that there is unsymmetrical distribution. As a result, this is negative, this is positive. मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes or no? Yes. Yes. Exactly. So this is called temporary. Temporary. कुछ देर के लिए London force, van der Waals force, dispersion force, IDID force. Instantaneous, like for a while. When the two chlorine molecules are close together, so there would be intermolecular force of attraction that is known as van der Waals force. अच्छा, okay. So yes, Iman Azhar. सर फिर इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? कोई देखेंगे क्वेश्चन बाद है में, देखेंगे, बताएंगे आपको कि क्यों कैसे पूछा जाता है, बताऊंगा। ओके ओके। अच्छा, लेट्स सपोज आई हैव हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, आई हैव 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, ये भी इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। when the 2 hydrogen molecule come close to each other just like that, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको यूं करके बताऊं तो हो सकता है थोड़ा और अच्छा समझ आ जाए। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक दैट। एक और मॉलिक्यूल बना दूं, अगर मैं एक और मॉलिक्यूल बना दूं इस तरह का, okay, there are 2 electrons which is called covalent bond shared by, basically this is called a shared pair. So when the 2 hydrogen molecules are coming closer to each other, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये रिवॉल्व कर रहा होगा यूं, इस तरह से, इस तरह से। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, इस तरह का एक क्लाउड सा फॉर्म हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब दूसरा हाइड्रोजन उसको आकर अप्रोच करेगा, व्हाट वुड हैपन, सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे पीछे हाइड्रोजन की तरफ। एज अ रिजल्ट आई वुड से दैट, I would say that this would become partial negative, this would become partial positive. अब अगर मैं आपसे पूछूं what is the difference between this and this, आप बोलेंगे सर वहां तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन थे, वहां पे तो बड़ी वीआईपी टाइट वाली रिपल्जन हो रही थी। हाँ बिल्कुल हो रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्जन हो रही थी वहां पर। यहाँ पे तो बेचारे है ही गरीब आदमी है, इसके पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन, क्या रिपल्जन होगी यार। स्मॉलर मैग्नेट क्या एक दूसरे को रिपेल करेगा, लो ना बड़े बड़े मैग्नेट, बड़े बड़े ब्लॉक्स लो मैग्नेट के, फिर देखो तुम्हें भी उठा के अगर वो रिपेल ना करें तो फिर बोलना तुम मुझे। बड़े बड़े ब्लॉक जब रिपेल कर रहे होते हैं उनकी रिपल्जन की पावर ही अलग होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्जन,
less electrons, less repulsion. As a result of repulsion, they would be, when they would be getting a charges just like that, partial negative, partial positive, इसमें बहुत strong charge develop होगा. इसमें जो charges हैं, they are weak. इसमें जो क्यों पता है क्यों? Charges are produced, okay, लेकिन they are produced as a result of the less number of electrons, as a result of the repulsion of the less number of electrons. So I would say that ये जो partial charges हैं, they are weak charges, weak charges, strong charges. अगर तुम क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन को डिस्कस करो, ओ भाई उसका तो प्रोटॉन नंबर ही 35 होता है. A lot of electrons are there in bromine. Iodine, oh ho, iodine, more electrons. More electrons means more repulsion. More repulsion means as a result of repulsion, obviously बात है, they would be getting partial charges. तो iodine तुम सोचो, just imagine कि आयोडीन का जो चार्ज प्रोड्यूस होगा कितना स्ट्रांग होगा भाई. दिस इज द रीजन इन IGCSE वी यूज्ड टू टेल आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अगर आप बोलोगे क्यों, क्योंकि आयोडीन इज हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और व्हाई फ्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर? फ्लोरीन इज पुअर पर्सन, इट हैज ओनली 9 इलेक्ट्रॉन्स. 9 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत कम है एज कंपेयर टू 127 इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्लोरीन की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दैट इज अ वीक फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिपल्जन. वीक चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड. when the weak charges are produced, तो ultimately fluorine would be a gas at room temperature, जबकि chlorine is a liquid, bromine is a liquid. ओके, क्लोरीन गैस भी होता है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड, एस्टेटीन इज सॉलिड. डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो हमने ये बात सीखी कि मतलब आपने इस चीज को यूं एनालाइज किया कि सर आपके कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन इज गैस, क्लोरीन इज गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड, एस्टेटीन इज सॉलिड. They all are diatomic. They all are diatomic. So you can analyze from this statement that it has less electrons. Less electrons. It has more electrons. So less electron means less repulsion. Less repulsion means weak partial charges. Less repulsion means weak partial charges. Okay. More electron means more repulsion, and more repulsion means strong partial charges. And strong partial charges means what? So let's suppose this is astatine. Let's suppose this is astatine, astatine. Let's suppose this is fluorine, fluorine. Negative, positive, negative, positive. Okay. Same molecule I'm going to make to show the force of attraction, because intermolecular force of attraction is between the molecule, not in the molecule. So I would have to make two molecules unwillingly. So ये attraction है, that is intermolecular force. तो तुम मुझे अब इसको अलग करके दिखा दो. बहुत हीट चाहिए, बहुत हीट चाहिए. आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो रिमेंबर, van der Waals force, like London force, dispersion force depends on the two factors. Number one, number of electrons. Number of electrons. Number two, surface area. Number two, surface area. ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर van der Waals फोर्स डिपेंड कर रही होती है. अब मैं आपसे पूछूं, why fluorine is a gas, bromine is liquid? Fluorine के पास less number of electrons, less repulsion, weak charges are produced, weak attraction. This is the reason it has lower boiling point. It is a gas at room temperature. Why bromine is a liquid? Bromine is having more electrons, more repulsion.
More repulsion means strong charges are produced. Strong charges are produced means that they would be having a strong attraction. So this is the reason the particles would be coming closer to each other. This is the reason we can say that bromine is a liquid at room temperature. Okay, so depending on the number of electrons, depending on the number of electrons, remember, okay, तो ये important है. अच्छा, सरफेस एरिया की क्या कहानी है भाई? सरफेस एरिया की क्या कहानी है? रिमेंबर, लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि you have 8 suits. You have 8 suits. Like I can say that I have 8 t-shirts and 8 trousers, and I have to travel and this is a bag. I have to travel and this is a bag and you have to put them in the bag. Okay, तो आपने क्या किया? आपने ऐसे ही उठाया और बस उसको ठोस दिया उसके अंदर, ऐसे ही किया, ये बस दे दिया मुझे. अब मैंने जब बैग को पकड़ा, इतना मोटा बैग, मैंने कहा भाई मैं खुद चलूं या इस बैग को लूं? कितना बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी पूरी दुनिया को मैंने इसमें भर दिया है. और अगर मैं किसी दूसरे बच्चे को दूं, मैं बोलूं यार ये जरा इसमें बैग में अच्छी तरह से रखना, जरा तमीज के साथ, वो अच्छी तरह से फोल्ड करेगा. फोल्ड करने के बाद जब वो रखेगा तो क्या हो जाएगा? फोल्ड करने से क्या होगा? लेट्स सपोज दिस इज टी-शर्ट, दिस इज अनदर टी-शर्ट. लेट्स सपोज, अब जरा मेरी बात को सुनिएगा गौर से. जस्ट इमेजिन, दिस इज अनदर टी-शर्ट, दिस इज अनदर टी-शर्ट, दिस इज अनदर टी-शर्ट, दिस इज अनदर टी-शर्ट. ओके, और लेट्स सपोज ईमान ने जो कपड़े रखे थे, वो ऐसा रखा था. Let's suppose this is the first t-shirt. Let's suppose this is another t-shirt. Let's suppose this is another t-shirt. Oh भाई, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है. अब देखो एक चीज मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये देखो. याद रखिएगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा उनको सेपरेट करना वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू. दिस इज द रीजन those molecules which are having the higher surface area, they require a lot of energy to boil and melt. This is the reason intermolecular force depends on the surface area as well. More surface area, more attraction. More attraction means stronger London force. Stronger London force means that more energy would be required to melt, more energy would be required to boil. तो ये बहुत important concept है, इसको याद रखना है आपने. So there are only 2 factors. Number 1, number of electrons, and number 2, the surface area. अब आप बोलोगे सर ये तो आपने कपड़ों की मिसाल दे दी, कोई मॉलिक्यूल बताएं. तो मॉलिक्यूल, if you remember from IGCSE, let's suppose I have pentane, CH3, CH2, 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 CH3, okay, and I have this is another molecule of pentane, this is another molecule of pentane, this is another one, this is another one. Okay, and see this, I can make this structure in this way as well. As you remember, you have discussed isomers. See this, the formula is the same. इसका formula क्या है? C5. इसका formula क्या है? C5 H12 कैसे? 3 5 7 9 9 plus 3 12. इसमें गिनो जरा, C5 H3 4s are 12. Molecular formula is same, but the structure is different. How much space this is occupying? You will say just this space, just like that. मैं आपको कहूँ ले भाई एक और मॉलिक्यूल है मेरे पास, just like that. एक और मॉलिक्यूल है मेरे पास, just like that.
नाउ सी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओ माय गॉड, इतना कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो ऐसे ही है जैसे मैंने आपसे हाथ मिलाया, मैं कहता हूँ अब्दुल्ला से मैंने हाथ मिलाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। अब्दुल्ला के तो नखरे ही अलग हैं, अब्दुल्ला ने तो सिर्फ एक उंगली आगे कर दी, जैसे लोग करते हैं ना, जैसे होता है ना कुछ लोग, मतलब वो हल्का सा आधा हाथ मिलाते हैं, जैसे उनके हाथ में दर्द हो, आधा हाथ मिलाया और आसानी से अपना हाथ खींच लिया, मैंने भी छोड़ दिया क्योंकि उसने मिलाया ही आधा था। और मैंने अगर जो है ना इब्राहिम से हाथ मिलाया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे होते हैं ना, एकदम एनर्जेटिक होकर जोर से दबा लिया मैंने हाथ, अब तुम मेरा हाथ छुड़वा के दिखाओ। तो ये वाले मॉलिक्यूल है ना जिनका सरफेस एरिया कम होता है, इन्होंने हाथ तो मिलाया है लेकिन एक उंगली से हाथ मिलाया है। आप इन्हें थोड़ी सी एनर्जी दोगे, आप इन्हें थोड़ी सी एनर्जी दोगे, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, आसानी से मेल्ट हो गया, काम तमाम हो गया। लेकिन जो ये वाले मॉलिक्यूल हैं, ये वाले देख रहे हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, कितना स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसने इसके साथ अट्रैक्शन की हुई है, इसने इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। So that's why this is the reason it is having a stronger intermolecular force due to the higher surface area. So if the surface area is higher, so means that intermolecular force would be higher. If the surface area is lower, so the intermolecular force would be lower. That's why I told you the two factors. Yes, Abdullah? Sir, how are we supposed to know if the surface area is high or low? Examiner would be giving you the molecule, so no tension. Okay? Examiner आपको देगा ना, ये तो आपने नहीं सोचना। ये सीमान, सर तो कांटेक्ट पॉइंट ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होना चाहिए, अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होना चाहिए। वो कैसे पता वो चलेगा? मेल्टिंग पॉइंट से पता लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट से पता लगेगा। मैंने आपको बता दिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेल्सियस, इसका है 150 डिग्री। तो आप समझ नहीं जाओगे क्या? आप समझ नहीं जाओगे क्या? लो आईएमएफ है, हाई आईएमएफ है, तो क्या आपको इतना अंदाजा नहीं होगा हाई आईएमएफ क्यों है? क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया होगा। उसका लो आईएमएफ क्यों है? क्योंकि लेस सर्फ। बात मेरी समझ आ रही है मैं क्या सेंस बनाना चाह रहा हूँ? ओके जी। अच्छा, अब लेट्स सपोज मुझे आलिया कहती है कि सर आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्यों नहीं सोचा, आप डायरेक्ट सरफेस एरिया पे क्यों आए? आप ये भी तो कह सकते थे ना इसके पास कम इलेक्ट्रॉन, इसके पास ज्यादा है। तो मेरे भाई फॉर्मूला सेम है दोनों का, C5H12, C5H12, नंबर ऑफ एटम सेम है। जब नंबर ऑफ एटम सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन का तो तुम सोच ही नहीं सकते हो ना इस एग्जांपल में। हाँ हाँ हाँ, अगर फॉर्मूला डिफरेंट होता मैं जरूर सोचता मैं। लेट्स सपोज इफ यू कैन सी दिस, इफ यू कैन सी दिस, हाँ हाँ हाँ, boiling point of methane and ethane. See this? ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मैं आपसे पूछूं क्यों है? फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज दिस, फॉर्मूला ऑफ ईथेन इज दिस। कम एटम्स हैं, लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा एटम है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग आईएमएफ है, कम इलेक्ट्रॉन है तो लो आईएमएफ है, लो आईएमएफ है तो लो बॉइलिंग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग आईएमएफ है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट है। समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस और नो? Yes. Yes, sir. गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया जी। सो दिस इज ऑल अबाउट वेंडर वॉल फोर्स, लंडन फोर्स, dispersion force, or you can say IDID force. Okay.